Hello students, welcome to my YouTube channel Mathematical Hunter. Today we will discuss about polynomial of class 9. This is your chapter 2. First of all, we will discuss about the introduction of polynomial. What is a polynomial? As you see, an algebraic expression in which the variables involved have only non-negative integral power is called polynomial. So, here you must have confusion regarding what is algebraic expression, what is variable, and what is non-negative integral power. Okay, one by one we will discuss what is algebraic expression, what is variables, and what is non-negative integral power. Okay. Now we will discuss what is algebraic expression. Algebraic expression क्या है? ये एक मैथमेटिकल टर्म है जो कांस्टेंट, वेरिएबल और फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशन, ध्यान दीजिए, कांस्टेंट, वेरिएबल एंड फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशन को लेकर बना हुआ होता है. इट इज a summation of, it is a group of constant, variable and fundamental arithmetic operation. So one by one we will discuss. Now let us take some examples. These are the examples of algebraic expression. First of all, this one, 5x square. Here 5 is your constant. Okay, 5 is your constant. इसको हम कोफिशिएंट भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट भी हम लोग बोलते हैं. It is known as coefficient also. Okay, here this one is your variable. Okay, this one is your variable and this one is your power. All together it constitutes one algebraic expression. Now take another example, 3x plus 3. Here also this one is your coefficient, this one is your variable, this one, clearly note, this one known as your fundamental arithmetic operation. फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशन जो होता है, फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशन जो होता है वो क्या क्या है, डे टू डे लाइफ में यूज होता है. देखिए, प्लस, माइनस, डिवाइड, इनटू, मल्टीप्लिकेशन एंड इनटू. These are the fundamental arithmetic operation. These all together constitute one algebraic expression. What is that? Algebraic expression. Now look, this one is also one algebraic expression. Now one by one we will discuss what is variable, what is constant, and we will also discuss what is power and what is term. Clearly mentioned, this is your term. An algebraic expression must have one term or many terms depending upon your expression. Okay. Now we will discuss what is variable. And dependent alphabet used in algebraic expression, their values always change with according to mathematical questions. तो वेरिएबल किसको कहा जाता है? एक अल्फाबेट जो यूज होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में. यहाँ पर बहुत सारे कॉमन अल्फाबेट आप लोगों को दिया गया है. देखिए
x, y, m, n, p, q. These are the common use alphabet जो algebraic expression में यूज किया गया है. These are the algebraic expression. और यहाँ पर जो अल्फाबेट यूज किया गया है, यहाँ पर देखिए x, यहाँ पर भी x, 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 y, x, y, m, 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 p. These are the variables. हम लोग इन सभी को बेस करके बोल सकते हैं कौन सा algebraic expression कितने वेरिएबल लेके बना हुआ है. फर्स्ट 1 वेरिएबल, सेकेंड वन also 1, third one also 1, fourth one also 1, but fifth one is, what is that? Fifth one is 2 variables, x and y. Here also 2 variables, m and, here also 2 variables, m and p. Okay, 2. So we can say variable can be changes. Variable can be changes with accordance to mathematical question. Their value can be changes with accordance to mathematical question. और यहाँ पर जो अल्फाबेट यूज किया गया है उन सभी को वेरिएबल कहा जाता है. किसी क्वेश्चन में दिया गया होगा कि put the value 1 in spite of x, put the value 1 in place of y, ऐसे क्वेश्चन में दिया जाता है. तो इन सभी अल्फाबेट वेरिएबल को रिप्लेस करके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जैसे नंबर दिया गया होगा उसी के अकॉर्डिंग हम लोग पुट करेंगे. जैसे कि यहाँ पर एक 3x plus 3 है, पुट x is equal to 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 into 1 plus 3. तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसमें ट्रांसफर हो जाएगा, किसमें बदल जाएगा, 3 plus 3 is equal to 6. तो इसी प्रकार वो डिपेंडेंट रहते हैं. और इसी प्रकार हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल और 3 वेरिएबल ऐसे क्लासिफाइड भी कर सकते हैं. So we will discuss what is coefficient. कोफिशिएंट क्या है? कोफिशिएंट एक कांस्टेंट वैल्यू है जो वेरिएबल के सामने यूज किया जाता है. कोफिशिएंट एक कांस्टेंट वैल्यू है जो वेरिएबल के सामने यूज किया जाता है. एक जनरल अलजेब्रिक इक्वेशन में ज्यादातर a, b को कोफिशिएंट के तौर पर यूज किया जाता है. यहाँ पर ध्यान देना होगा कि देयर वैल्यू ऑलवेज कांस्टेंट, उनका वैल्यू कभी चेंज नहीं होता और पर्टिकुलर टर्म में पर्टिकुलर कोफिशिएंट ही रहता है. वी विल डिस्कस अबाउट टर्म्स लेटर. नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज कोफिशिएंट. कोफिशिएंट किसको कहा जाता है? कोफिशिएंट. नाउ टेक द फर्स्ट एग्जांपल 3x plus 7. Here 3x plus 7. If I ask, अगर मैं पूछूं आप लोगों को x का कोफिशिएंट कितना है, तो जवाब क्या होगा? The coefficient of x, the coefficient of x is equal to 3. Now, अगर ये सेकेंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर मैं आप लोगों को बोलूं x³ का कोफिशिएंट कितना है, द कोफिशिएंट ऑफ x³ इज इक्वल टू कितना होगा? 5. These are the constant term. These are the constant term, constant value used in front of your variable. These are the variable. Now, in the same equation, if I ask you the coefficient of y is equal to what? 7. पर्टिकुलर टर्म में पर्टिकुलर कोफिशिएंट होता है. y का कोफिशिएंट अगर मैं पूछूं यहाँ पर इस एक्सप्रेशन पे, तो यहाँ पर कितना होगा? y का कोफिशिएंट 7 और x³ का 5. नाउ टेक द अनदर एग्जांपल 2x² plus 3y.
यहाँ पर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होगा 2 एंड द कोफिशिएंट ऑफ y here is equal to 3. यहाँ पर there are 3 number of terms are there. हम लोग पढ़ेंगे टर्म्स किसको कहा जाता है। यहाँ पर 3 ठो टर्म्स है, तीनों टर्म्स में सेम वेरिएबल है। कितना कौन है, सॉरी कौन वेरिएबल है वो, यहाँ पर एक्स वेरिएबल है। तो एक्स पर्टिकुलर एक्स जो फॉर्म में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3, एक्स क्यूब का 2 एंड एक्स स्क्वायर का कितना होगा 4। हियर वी डिस्कस अबाउट व्हाट इज कोफिशिएंट। ध्यान दीजिए कोफिशिएंट क्या होता है, ये वेरिएबल के सामने जो कांस्टेंट वैल्यू रहता है उसी को कहते हैं कोफिशिएंट। पार्टिकुलर टर्म में पार्टिकुलर वैल्यू जो होता है वो फिक्स रहता है। पार्टिकुलर टर्म में पार्टिकुलर वेरिएबल के सामने जो कांस्टेंट वैल्यू रहता है उसको ही बोलते हैं कोफिशिएंट। ओके, नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर। ठीक है, वो नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर क्या है हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लिखता हूं। थ्री एक्स स्क्वायर। यहाँ पर ध्यान दीजिए मैं पहले ही बता चुका हूं इसको क्या बोलते हैं वेरिएबल, इसको क्या बोलते हैं कोफिशिएंट, और इसको बोला जाता है पावर और एक्सपोनेंट। पोलिनोमियल में क्या होता है, पोलिनोमियल में जो भी वेरिएबल का पावर होगा वो क्या होना चाहिए, एक होल नंबर होना चाहिए, होल नंबर, एक होल नंबर होना चाहिए। और वो कहां से शुरू होता है, 0 से लेकर इनफिनाइट नंबर तक। पावर कभी भी नेगेटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए, पावर कभी भी इरेशनल नंबर नहीं होना चाहिए। जैसे कि √2, √3, √5 दीज आर। और नेगेटिव फ्रैक्शन टाइप नहीं रहना चाहिए, नेगेटिव और पॉजिटिव बोथ, 1/2, -3/2, -5/3 एक्सेट्रा, ऐसे रहना नहीं चाहिए। तब जाके उसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग पोलिनोमियल बोलेंगे। नो नेगेटिव एंड रेशनल नंबर कैन बी यूज। यहाँ पर हम लोग नेगेटिव और रेशनल नंबर टाइप नंबर यूज नहीं कर सकते। रेशनल नंबर टाइप में वो अगर होल नंबर हो रहा है देन वी कैन यूज। ओके, अभी हम लोग देखेंगे ये टर्म्स किसको बोला जाता है। The variable separated by arithmetic operation with their coefficient is called terms. तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ये एक एग्जाम्पल है ax plus by plus c। यहाँ पर मैं इसको लिखता हूँ ax plus by plus c। यहाँ पर हमारा कोफिशिएंट है a और यहाँ पर वेरिएबल है x। Okay, these are separated by arithmetic fundamental operation like plus, these are the plus। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ अरिथमेटिक, जो अरिथमेटिक फंडामेंटल
ऑपरेशन क्या है, एक और बार बता रहा हूँ, माइनस, प्लस, इनटू, डिवीजन, दीज आर द एक्सप्रेशन। तो हाउ कैन वी काउंट, हम लोग कैसे काउंट करें कि इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कितने टू टर्म्स हैं। हियर हम लोग इसे काउंट कर सकते हैं। यहाँ पर ये सेपरेशन है, देख रही है, तो ये हो गया 1, this one, 2 and this one also 3. Okay, now take this one 3. अब आप लोग पूछ सकते हो कि सर ये तो एक कांस्टेंट है, इसमें तो वेरिएबल भी नहीं है, तो ये कैसे एक टर्म हो सकता है। यस, इट कैन बी। हम इसके साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख सकते हैं। इसको अच्छे से समझिए, ये 3 इंटू 1 ही है, वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर ये वेरिएबल भी है, यहाँ पर ये वेरिएबल है, यहाँ पर ये कोफिशिएंट हो गया और यहाँ पर ये पावर हो गया। इसको जीरो पोलिनोमियल बोला जाता है, जीरो पोलिनोमियल बोला जाता है। हम क्लासेस में डिस्कशन करेंगे, तो ये भी एक एक्सप्रेशन हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर भी 1 टर्म है, यहाँ पर काउंट कीजिए 1, 2, 3, दीज आर ऑफ 3 टर्म्स। यहाँ पर कैलकुलेशन कीजिए 1, 2, दीज आर ऑफ 2 टर्म्स। यहाँ पर 1, 2, 3 as we have already calculated. So this is all about our introduction to polynomial. तो polynomials का introduction था an algebraic expression in which the variable involved had only non-negative integral power is called polynomial. अभी हम लोग बोल सकते हैं एक polynomial जो algebraic expression के थ्रू बना हुआ है, algebraic expression के थ्रू बना हुआ है, और उसका जनरल टर्म देखिए px, हम लोग लिख सकते हैं px, और इसको पढ़ेंगे कैसे, पोलिनोमियल, पोलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x। यहाँ पर अगर py लिखा गया हो तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं पोलिनोमियल ऑफ वेरिएबल y। px एक जनरल टर्म, मैं जनरल एक्सप्रेशन बता रहा हूँ आपको एक पोलिनोमियल का, an x n प्लस a n माइनस 1 x n माइनस 2 प्लस डॉट 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 प्लस a 2 n 2 प्लस a 1 n 1 प्लस n 0। ओके, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं पोलिनोमियल को। तो यहाँ पर हम लोग को ध्यान देना चाहिए कि पोलिनोमियल जो होता है क्या होता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें जो वेरिएबल का पावर नॉन नेगेटिव इंटीग्रल हो। तो हम लोग अभी डिफाइन करेंगे, कुछ जानेंगे, पहचानेंगे कौन पोलिनोमियल और कौन पोलिनोमियल नहीं है। यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेते हैं 3x स्क्वायर प्लस 2, 5x प्लस 3y, रूट 5x प्लस 3y, रूट x प्लस y। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वेरिएबल्स है 1, वेरिएबल 1, पावर कितना है 2, ये पॉजिटिव भी है, तो ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। यहाँ पर देखिए वेरिएबल 2, हम एक वेरिएबल में कोई डिपेंडेंस नहीं होता है, वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है या नहीं, बट
वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कभी भी वेरिएबल के ऊपर डिपेंड नहीं करता, डिपेंड करता है तो वेरिएबल के पावर के ऊपर। तो यहाँ पर 1 है तो ये भी पोलिनोमियल है। यहाँ पर कोफिशिएंट एक इरेशनल नंबर है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी एक हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये भी एक पोलिनोमियल है, यहाँ पर पावर +1 है। नाउ हियर हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं x टू दी पावर हाफ प्लस y। तो यहाँ पर देखिए ये एक होल नंबर नहीं है, तो ये हमारा पोलिनोमियल नहीं है, ठीक है, दिस इज नॉट ए पोलिनोमियल। थैंक यू। हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। हाउ कैन वी क्लासिफाई द पोलिनोमियल इन linear, quadratic, cubic, biquadratic, etc. हम लोग एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से नंबर ऑफ वेरिएबल्स, नंबर ऑफ टर्म्स, उसकी का डिग्री कितना है, वो सब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी के